Hello and welcome to the 8th session of CRM. In this session, we are going to cover about the basic principles of CRM and CRM issues. Now we are going to discuss about the principles and issues of CRM. Now we are firstly going to consider about what are the principles of CRM. If we discuss about the principles of CRM actually gives us a basic idea what are the things to be followed while performing on CRM. CRM में perform करते वक्त कौन से ऐसे बेसिक आइडियाज़ हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं. So as we all know that the key to the CRM is to build on the relationship angle. हम जैसे कि हम previous classes के अंदर भी discuss कर चुके हैं और CRM में हम एक basic idea भी यही लेकर चलते हैं कि CRM का key concept है to build up the relationship with your customers and to focus on both receiving and delivering the values. उस relationship को maintain करते हुए आपको एक वैल्यू जनरेट करनी होती है अपने कस्टमर्स के लिए और वही कस्टमर्स आपको वैल्यू जनरेट करता है. दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट और CRM में अप्लाई किए गए हैं तो वी नो दैट अबाउट द कस्टमर्स. हम लोग अपने कस्टमर्स की नॉलेज गैदर करते हैं, हम लोग अपने कस्टमर्स के बारे में जानते हैं. सो वी आर बेसिकली फोकसिंग अबाउट व्हाई दे आर बाइंग एंड व्हाट दे आर बाइंग. That means understanding your customer, generating that understanding कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं. Just because for that understanding of the customer, सिर्फ उसी understanding से we maintain some principles of CRM which is already mentioned in the slide. हम कुछ principles generate करते हैं, कुछ principles maintain करते हैं. We can say that principles हमें कुछ एक guidelines और कुछ regulations प्रोवाइड करवा रहे हैं CRM के अंदर. सो दीज प्रिंसिपल्स आर वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं. देयर वर बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स इन CRM. फर्स्ट इज ट्रीट द कस्टमर इंडिविजुअलिटी. सेकेंड, एक्वायर एंड रिटेन द कस्टमर्स लॉयल्टी. Third, select good customer instead of bad customers. So these are the 3 basic principles जिसके आगे हमारी CRM revolve करती है. CRM के basic rules, basic guidelines हमें provide करवाई जाती हैं. So as we will start discussing about the treat customer individuality. If we're talking about individuality, so if we think about the customers in CRM, companies always try to collect the data of individual customer. That means the CRM work on individualism. हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर्स का डाटा क्रिएट करना उसे एक इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेकर जाता है. दैट इज़ वाई हम इस फिलोसफी को personalization philosophy बोलेंगे. This is a philosophy of personalization. Now the question arises, what is personalization? अगर इसे एक terms में define किया जाए तो मैं कहूँगी personalization is the process of tailoring to the individual user's preferences. मतलब individual की needs के हिसाब से product को बनाया जाना. It is commonly used to enhance the customer services. बहुत ही common personalization activities बहुत common होती हैं हमारी customer की services को enhance करने की. हम इससे refer करते हैं कि it is one to one marketing. That means हम अपने individual customer पर focus करते हैं और उसे उसी की needs के हिसाब से, उसी की wants के हिसाब से हम product उसको deliver करते हैं. So that is why हम ये कह सकते हैं कि it is means of meeting the customer needs more effectively and efficiently. हमारी customers की needs को उतनी ही effectively और उतनी ही efficiently हम approach कर सकते हैं अगर हम personalization की तरफ हैं तो. And yes, as the slide is also mentioning that personalization की definition, that is personalization means the content and a service to the customer should be designed based on the customer preferences and behaviors. So it is provide services and content to the customer on the basis of customer preferences and behaviors. कस्टमर के प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स को ध्यान में रखते हुए जब हम कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब हम कस्टमर को कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट इन द सेंस वी वर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ गुड्स, वी वर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस, वी वर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ वैल्यूज. सो उस तरीके के कंटेंट वी वर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स. And
यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोनलाइजेशन एंड CRM टुगेदर, अगर हम ये देखें कि वाई पर्सोनल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन CRM, और अगर हम CRM और पर्सोनल्स को दोनों को एक साथ रखें, सो इन दैट केस इट इज़ वेरी मच गुड कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग द एक्सप्लोजर इन द मार्केट। हमारे मार्केट के स्कोप को बढ़ाने के लिए, उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करने के लिए, हमारे मार्केट को ब्रॉडर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो दोनों को एक साथ परफॉर्म करना कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ये कहना गलत नहीं होगा। So now we are moving towards the second benefit, second principle, which is actually arises from the CRM. जो CRM का principle है, this is acquire and retain the customer loyalty. As we were discussing about that second principle is acquire and retain the customer loyalty. So this concept is basically कि आपका जो CRM है, CRM के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लॉयल्टी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था पुराने चैप्टर्स में, दैट इज़ कस्टमर को रिटेन करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है नए कस्टमर को एक्वायर करने से। वी वर ऑलरेडी स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन प्रीवियस सेशंस कि हम अपने जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको अगर रिटेन करके रखते हैं तो वो हमें 50 से 70% तक का प्रॉफिट देती है, रादर देन दी एक्वायरिंग दी न्यू कस्टमर्स, क्योंकि उन पर उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट हम लोगों को एक्वायर करनी पड़ती है। सो सेम यही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, दैट एक्वायर एंड रिटेनिंग द कस्टमर लॉयल्टी। दे वर बेसिकली सेइंग दैट इट इज़ गुड अगर कंपनी कस्टमर लॉयल्टी जनरेट करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट इज़ कस्टमर लॉयल्टी। सबसे हम ये बात तो कर रहे हैं, हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि येस वी आर acquiring and retaining the customer loyalty, but now the question arises, what is customer loyalty? Customer loyalty होती क्या है? Customer loyalty is basically when an organization, I'm defining it, that when an organization receive the ultimate reward for the way it interact with its customer. Loyal customer buy more, buy longer and tell more people that true customers loyalty. यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि कस्टमर को वैल्यू देने की बाद कस्टमर कंपनी को लॉयल्टी फॉर्म में वैल्यू जनरेट करके देती है। यानी कि जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज़, जितने ज़्यादा रिवॉर्ड आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, उतना ही ज़्यादा इन रिटर्न वो आपको आपकी प्रॉफिट्स आपको वैल्यू देगा। कैसे? आपसे ज़्यादा सामान लेकर, आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक जुड़कर, और एट द सेम टाइम अपने साथ साथ और बहुत सारे लोगों को आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में अटैच करके उनको भी आपका कस्टमर बनाकर, इसके थ्रू वो एक लॉयल्टी जनरेट करता है। तो दैट इज़ वाई, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ कस्टमर लॉयल्टी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ एसेंशियल फॉर अ कस्टमर टू एक्वायर द लॉयल्टी एंड जनरेट द लॉयल्टी इन द एग्जिस्टिंग कस्टमर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम उन्हें एक्वायर करके रिटेन कर सकें, सॉरी फॉर दैट। सो येस, और वो हम कैसे कर सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कस्टमर लॉयल्टीज तो जनरेट होती हैं, बट कैसे? इट कैन बी हैपेंड बाय, एज मेंशनिंग इन द स्लाइड, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। जितना ज़्यादा हम उनसे इंटरैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके साथ एक कॉन्टिन्यूअस लिंक में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी प्रेफरेंसेस को हम जान सकते हैं, और उन्हीं प्रेफरेंसेस को मीट करने के लिए हम उन्हें एक फर्दर वैल्यूज़ देंगे। सो विच इज़ ऑल्सो मैंशनिंग इन दी स्लाइड कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, स्पेशली व्हेन डिज़ाइन टू मीट द कस्टमर प्रेफरेंसेस। In other words, acquire and retain customer loyalty through personal relationship. हाँ, तो this is what कि हम customer loyalty generate कर रहे हैं personal relationship के through, personal marketing के through. So this is what the third principle of your CRM, to acquire and retain the customer loyalty. Now we are moving towards the third principle of CRM. This is what select the good customer, retain the bad one. As a slide discussed, selection of a customer based on the lifetime value find. हमारे गुड कस्टमर्स कौन से हैं ये हमें पता लगेगा जब हम लोग लाइफ टाइम वैल्यू फाइंड लेते हैं। सो अगेन द न्यू कॉन्सेप्ट अराइजेज इन फ्रंट ऑफ अस कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है। अगर लाइफ टाइम वैल्यू को एक्सप्लेन करना हो तो इट इज़ व्हाट, viewing the value of a consumers in terms of how much product or service
he will purchase during his lifetime, not just on the current transaction. By focusing on the lifetime values, a marketer get a much more realistic picture of a value of keeping the customer loyalty. यानी कि हम ये चेक करते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में कितना प्रोडक्ट या किस तरीके के प्रोडक्ट आपके कस्टमर खरीदते हैं. नॉट एग्जैक्टली द फ्यूचर वन, द पास्ट वन, कि कितने प्रोडक्ट्स खरीदे गए, अभी एट प्रेजेंट कितनी हुई. सिर्फ करंट पर फोकस नहीं करना है, पास्ट पर भी फोकस करना है कि आज से पहले ये प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा गया है. उस डाटा के थ्रू, उस सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू कंपनी को एक क्लियर और एक रियलिस्टिक आइडिया मिलता है, एक रियलिस्टिक पिक्चर आती है उसके सामने कि कौन सा कस्टमर उसका ज़्यादा लॉयल है, कौन सा कस्टमर एक्चुअली उसको वैल्यू जनरेट करके दे रहा है. सो दैट इज़ वाई सिलेक्टिंग ऑफ अ कस्टमर बेस्ड ऑन द लाइफ टाइम वैल्यू फाइंड, जो हम उसकी लाइफ टाइम वैल्यू निकालते हैं उसके थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा कस्टमर एक्चुअली हमें वैल्यू जनरेट करके दे रहा है. So now the next it is discussing about keep the right customer who generate the most profit. आपको जब लाइफ टाइम वैल्यू से जो फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, उसके बिहाफ पर वी एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे राइट कस्टमर्स कौन से हैं, वो कौन से हमारे राइट कस्टमर्स हैं जो हमें एक्चुअली वैल्यू जनरेट करके दे रहे हैं. हमें वैल्यू जनरेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी हो सकते हैं, वैल्यू जनरेट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स भी हो सकते हैं. देयर इज ऑल्सो फाइनेंशियल्स और नॉन फाइनेंशियल्स वंस. तो किस तरीके की हम वैल्यू जनरेशंस कर रहे हैं. सो ये एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है. एंड येस, द बेस्ट कस्टमर डिजर्व्स द मोस्ट कस्टमर सर्विसेज. कस्टमर केयर, हमें उस सेंस में, हमें उस केस में अपने कस्टमर्स को उतनी ही ज़्यादा केयर और उतने ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करके देने होंगे. सो दिस इज़ वाई सिलेक्टिंग द गुड कस्टमर्स. सो येस, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए. एंड दीज 3 प्रिंसिपल्स आर ट्रीट customer individualism, acquire and retain the customer loyalty, and third one is select the good customer, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. So now we are moving towards the CRM issues. CRM में कौन कौन से ऐसे issues हैं जो कि arise होते हैं और हम लोगों को हमेशा consider करने चाहिए. So as we start discussing about issues, तो issues को 2 तरीके से divide किया गया है. डिवाइड किया गया है, एक एथिकल इश्यूज से और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में. एज वी वर ऑलरेडी मेंशनिंग इन दी स्लाइड्स कि एक होता है एथिकल इश्यूज और दूसरा होता है इम्प्लीमेंट इश्यूज. एथिकल्स की बात करें तो एथिक्स आर दोज वैल्यूज, दोज मोरल्स जो कि आपकी सोसाइटी आपको देती है, जो कि आपकी लर्निंग्स आपको देती हैं. हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं. सो येस, व्हाट द स्लाइड इज मेंशनिंग, to implement such a system, extensive information about the customer must be collected and stored. The two concerns with regard to this system are customer privacy and the accuracy of information collected. हम अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज़ कर रहे हैं. ये सही है, हम कर सकते हैं. CRM इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट कि उस इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके अपने पास स्टोर करके आप आगे अपने लिए यूज़ कर रहे हो. बट इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं, 2 कंसर्न अराइज होते हैं जो एक कंपनी को हमेशा ध्यान में रखने होते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कस्टमर प्राइवेसी. आपको जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कस्टमर की मिल रही है उसे एक संभाल कर रखना और उसकी एक सिक्योरिटी बेस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. आप किसी तरीके की गलत या फेक इन्फॉर्मेशंस नहीं ले सकते हैं. एंड इवन इफ अगर आप किसी तरीके की फेक इन्फॉर्मेशंस या किसी भी तरीके की रॉन्ग स्टेटमेंट्स को भी कंसीडर करते हैं, सो इन दैट केस कंपनी के ही एस्टिमेट्स ख़राब होते हैं, कंपनी ही सही तरीके के वैल्यू, सही तरीके की डाटा जनरेट नहीं कर पाएंगे. सो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो एथिकल इश्यूज में ध्यान रखने होते हैं. एंड येस, एट द सेम टाइम द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आर बेसिकली दोज इश्यूज जिसके अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशंस गैदर की हैं उन इन्फॉर्मेशंस को आप कैसे आगे इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि उस इन्फॉर्मेशंस को कैसे अपने बेनिफिट्स के अंदर लेकर आओगे. दैट्स कम्स इनटू द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज.
सो एथिकल इश्यूज में जैसा कि हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कस्टमर प्रिवेसी। कस्टमर प्रिवेसी इज व्हाट, आपको जब एक कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन देता है, सो दैट वेरी ऑब्वियस कि वो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप उस कंपनी के साथ क्रिएट कर रहा है। सो इन दैट कंसिडरेशन अगर वो कंपनी ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करती है या ये इंफॉर्मेशन अगर वो सिक्योर नहीं रख पाती है या कहीं से इन लीक्स होती हैं, तो दिस इज़ व्हाट द इंफॉर्मेशंस जो कि कस्टमर से रिलेटेड है एंड यू आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट मच सिक्योरिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सो इन दैट केस ये एक एसेंशियल और एथिकल इशू होता है CRM के अंदर कि दैट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो इट मस्ट बी सिक्योर एंड इट्स मस्ट बी सेफ। सो व्हाट्स द स्लाइड इज मेंशनिंग, CRM deals with the large amount of customer data through the various touch points and communications channels. So it is a duty to perform the privacy functions. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्रिवेसी उस कंडीशन में होनी चाहिए। बहुत एसेंशियल फैक्टर एक रोल हो जाता है कि आप इतनी जनरली जो भी आप निक पॉइंट तक अपने कस्टमर्स की डिटेल्स ले रहे हो, आप उन डिटेल्स को बहुत ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी अ प्रिवेसी functions to perform in the CRM system. And yes, the 4 basic rules might be considered in that. 4 तरीके के रूल्स इसके अंदर कंसीडर हो सकते हैं। सबसे पहला, the customer should be notified their personal information is collected and then we will use for specific purpose. आपके कस्टमर को पता होना चाहिए कि आप एज अ कंपनी और वो आपके कस्टमर होने के नाते आप उनकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहे हो और आप उसे एक फर्दर पर्पसेस के लिए यूज़ भी कर सकते हो। सो इन दैट केस योर कस्टमर मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें ये लगे कि उनकी अवेयरनेस के बगैर उनकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया गया है। सेकेंड, द कस्टमर शुड बी एबल टू डिक्लाइन टू बी ट्रेस्ड इफ़ देर ऑलवेज सम काइंड ऑफ ऐसा प्रिवेसी या सिक्योरिटी सिस्टम्स की अगर आपके कस्टमर नहीं चाहते हैं कि उनकी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जाए कंपनीज के पास या उनको किसी भी तरीके से ट्रैक किया जाए, सो इन दैट केस वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए। नाउ थर्ड, द कस्टमर शुड बी अलाउड टू असेस देयर इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट इट। आपके कस्टमर्स के पास भी असेसमेंट होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और एट द सेम टाइम सही इन्फॉर्मेशन दे सके, और अगर उसको कहीं रेक्टिफाई भी करना है तो उसे वो रेक्टिफाई भी कर सके। सो दैट इज़ वाई इट ऑलवेज अलाउ टू assess their informations and correct it. Fourth, customer data should be protected from the अनऑथराइज्ड यूजेज। यस, किसी भी तरीके की अनऑथराइज्ड यूजेज से आप उनके डाटा को नहीं दे सकते। आप किसी भी तरीके से वहाँ पर उनके साथ उनके जो आपके पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है आपके कस्टमर्स का, वो अनऑथराइज्ड यूजेज के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 बेसिक कंसिडरेशंस जो कि हम लोगों को एक प्रिवेसी फैक्टर से हमेशा कंसीडर करने होते हैं, क्योंकि वी आर एक्चुअली डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द ट्रस्ट रिलेशनशिप। हम एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ वाई। सो नाउ इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो थे हमारे कुछ एथिकल इश्यूज से रिलेटेड। नाउ वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में कि जितने भी सोर्सेज इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं, हम उन इंफॉर्मेशंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स ऑल कम इनटू द इम्प्लीमेंटेशन इशू। सो CRM इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एनी बिजनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अ बिजनेस कैन नॉट एक्सपेक्ट टू सक्सीड विदाउट सम सॉर्ट फॉर्म ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो effective CRM is necessity to success. However, CRM is not without its implementation. हम इससे पहले भी बहुत सारे सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि येस, हमारे CRM हमें एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे CRM हमें एक सक्सेस के थ्रू लेकर जाते हैं। अगर हम किसी भी तरीके का मार्केट सिनेरियो अपना बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए वी नीड द हेल्प ऑफ अ CRMs, क्योंकि हमें कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। बट वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे CRM कॉन्सेप्ट्स आके ख़त्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, विच इज़ द लाइन इज़ मैंशनिंग दैट CRM इज़ नॉट विदाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होंगी, जब तक आप उस
इंफॉर्मेशंस को सही से एनालाइज करके अपने लिए सही जगह उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब तक उन सब इंफॉर्मेशंस का, उन सारे फैक्ट्स का कोई यूज़ नहीं है बिजनेस के अंदर. सो यस, रूल्स टू बी कंसीडर. किस तरीके के रूल्स होते हैं कंसीडर करने में? सबसे पहले तो एक्सक्लूसिविटी, दैट इज आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हैं दे ऑलवेज सम एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ अ पॉइंट्स, कि आपके कस्टमर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं. सेकेंड, रिड्यूस द पुअर प्लानिंग. आपकी जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उसको हम कुछ एनालिसिस करते हैं, उसमें हम कुछ प्लानिंग्स करते हैं. सो इन दैट केस वो प्लानिंग्स कभी भी बहुत पुअर नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी वेरी मच फोरकास्टेड, वेरी मच नोन्ड, कि हाँ कि किस तरीके की प्लानिंग हो रही है और कैसे हो रही है. तो प्रॉपर फोरकास्टिंग एंड येस द प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी अप्लाइड, कि उस इन्फॉर्मेशन में से आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होनी चाहिए. Then this is all about in our 8th session. So now there are few questions which is do it yourself. You have to explain the 3 principles of CRM, which is question 1 is describing, and second is what are the 2 important considerations in ethical issues. हमारे ethical issues में जो हमने 2 considerations पढ़ी थी, वो 2 considerations क्या थी और उनमें से उनकी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डिस्कस करने हैं. एंड नाउ यस, वी आर वाइंडिंग फॉर द टुडे, एंड yes, we will going to discuss more on our session 9 of a CRM. So thank you so much.